Hello everybody, welcome to our channel Law and Knowledge. I would like to request all of you to please like, share and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram, whose link is given in the description box. So as we all know, the Accommodation Control Act 1966 lecture series is going on. If you guys haven't checked our previous video, so please go and do that, as it concerns the basis of this act. So we should start today's lecture with a new chapter basically, and with the section 24. So the chapter we are going to start is chapter 4, which says deposit of rent, जो हमारा चलता है 24 section से लेकर 27 section तक. So what our section 24 says to us? Let us read that. 24 section says receipt to be given for rent paid. रिसीप्ट देनी पड़ती है जब भी कोई टेनेंट रेंट पे करता है. तो अगर कोई डेट फिक्स नहीं है कि उसको रेंट कब डिपॉजिट करना है, कब उसको देना है, पे करना है, तो एज पर तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही है कि इस तारीख तक आपको रेंट देना है. लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज द रेंट शुड बी डिपॉजिट विद इन 15 डेज. 15 तारीख के हर महीने को जमा कर देना चाहिए. ठीक है, लेट अस रीड इट. Every tenant shall pay rent within the time fixed by contract or in the absence of such contract by the 15th day of the month next following the month for which it is payable. हर 15 दिन को पे करना है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से जो डे फिक्स हुआ है उस अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पर और इवन जो लैंडलॉर्ड है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो टेनेंट को एक रिसीप्ट दे कि हाँ भैया तूने रेंट पे कर दिया है. लेकिन अगर वो यहाँ पर रिसीट नहीं देता है तो क्या होगा? या तो लैंडलॉर्ड या फिर लैंडलॉर्ड का जो एजेंट है वो रिसीट देने से मना कर दे टेनेंट को, तो क्या होगा? लेट्स रीड इट. Every tenant who makes a payment of rent to his landlord shall be entitled to obtain forthwith from the landlord or his authorized agent. उससे या फिर उसके authorized agent से टेनेंट को a written receipt for the amount paid to him signed by the landlord or his authorized agent. एक रिसीट मिलनी चाहिए जो साइन होनी चाहिए या तो लैंडलॉर्ड से या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट से. लेकिन अब यहाँ पे एजेंट और लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दें कि नहीं हम रिसीट नहीं देंगे, तो बेचारा टेनेंट क्या करे? सो टेनेंट हैज अ राइट टू मूव टू द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एंड वहां जाके ही कैन अप्लाई कि उसे रिसीट नहीं मिल रही है, तो जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो उस चीज को देखेगी, परखेगी और उसके बाद लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट दी जाती है कि उसको डबल रेंट को माफ करना पड़ेगा या फिर उसको पे करना पड़ेगा डबल रेंट. और अगर ये पता चलता है कि टेनेंट गलत है तो टेनेंट को 2 डबल रेंट पे करना पड़ेगा. लेट्स रीड. If the landlord or his authorized agent refuses or neglect to deliver to the tenant a receipt referred in the subsection 2, the RCA, the Rent Control Authority, may, on an application made to it in this behalf by the tenant, within 2 months from the date of payment, जब पेमेंट करना है उसी के 2 महीने के अंदर and after hearing the landlord or his authorized agent by order, direct the landlord or his authorized agent to pay to the tenant by the way of damage such sum not exceeding the double of amount of rent paid by the tenant, and the cost of application shall also grant a certificate to tenant in respect of the rent paid. उसको डबल अमाउंट का डैमेज तो पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ में एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हाँ भैया तूने रेंट पे कर दिया. तो देखा आपने यहाँ पे लैंडलॉर्ड से बचाया जा रहा है टेनेंट को, मतलब टेनेंट को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है. That's what I said, that MP accommodation is not only act for the landlord, but this act is also protecting the tenants. Okay? Let's move further to our section 25, which is deposit of rent by tenant. टेनेंट तो रेंट डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन अभी ऊपर वाले सेक्शन में क्या पड़ा कि यहाँ पे वो जो लैंडलॉर्ड है वो सिर्फ रिसीट देने को मना कर रहा है. अब यहाँ तो लैंडलॉर्ड रेंट ही लेने से मना कर रहा है कि नहीं मुझे रेंट ही नहीं लेना, तो क्या होगा? तो where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant within the time referred
2 in the section 24 or refuses or neglect to deliver a receipt referred therein, or where there is a bona fide doubt as to the person or persons to whom the rent is payable, the tenant, अब या तो वो लेने से ही मना कर रहा है रेंट, या तो रिसीप्ट ही नहीं मिल रही, और अच्छे इंटेंशन में वो तो बेचारा टेनेंट आकर दे रहा है, और जब पता ही नहीं है कि रेंट किसको पे करना है, तो इस कंडीशन में टेनेंट क्या करेगा? Let's read it. The tenant may deposit such rent with the rent control authority in the prescribed manner, and such deposit of rent shall be a full discharge of the tenant from the liability to pay rent to the landlord. तो RCA को उसको जाकर पे करना पड़ेगा, अपना जो रेंट का अमाउंट है वो किसको देगा? RCA को देगा, और इसी के थ्रू वो अपनी लाइबिलिटी से हट जाएगा कि एटलीस्ट उसने लाइबिलिटी अपनी पूरी कर दी रेंट पे करने की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? RCA की भी तो कोई ड्यूटी बनती है, उसको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना लैंडलॉर्ड को कि भैया आपका रेंट आ गया। ऐसा नहीं कि आप वहां टेनेंट के घर जाकर लड़ने लग जाओ, है ना? तो व्हाट इज इट? लेट्स रीड इट. On such deposit of the rent being made, the rent controlling authority shall send in the prescribed manner a copy or copies of application to the landlord or person claiming to entitle to the rent with an endorsement of the date of such deposit. वो जिस डेट को वो एप्लीकेशन आई थी और जब उसने वो रेंट पे करा था, उस तारीख की एक कॉपी, उन सब एप्लीकेशंस रिसीट की कॉपी वो लैंडलॉर्ड को भेजेगी। उसके बाद क्या होगा? इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द विड्रॉल ऑफ एनी डिपॉजिट ऑफ रेंट, अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है कि हाँ आपके पास रेंट आ गया था, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मुझे दे चाहिए, तब क्या करेगी RCA? The rent control authority shall, if satisfied the applicant is the person entitled to receive the rent deposited, order the amount of the rent to be paid to him in the manner prescribed, and such payment of rent shall be a full discharge of rent control authority from all the liability to pay the rent to the landlord. और जब हमारी जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ यही लैंडलॉर्ड है, इसी को रेंट मिलना चाहिए, यही सूटेबल इंसान है जो रेंट डिजर्व करता है, उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो जो अमाउंट रहता है रेंट का वो दे देती है। उसके बाद जो RCA है वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से छूट जाती है कि हाँ फाइनली जो हमारा अमाउंट मिला था टेनेंट से वो हमने क्या कर दिया है? फाइनली पे ऑफ कर दिया है लैंडलॉर्ड को। क्लियर? 24 और 25 एक बात करता है रिसीट की, एक बात करता है कि वो रेंट ही नहीं ले रहा है। ठीक है, और दोनों ही केस में कंडीशन पनिशमेंट की सेम है। किसी ने भी गलत चीज बोली, डबल पे करना पड़ेगा सामने वाले इंसान को। सो दैट्स इट. नाउ लेट अस मूव टू द फर्दर चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 विच सेज अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, देयर पावर, फंक्शंस एंड अपील. ये चैप्टर चलता है 28 से लेके 36 तक. So let us start with this chapter with the section 28 which says appointment of rent control authority. ये सेक्शन भी बहुत इजी सा है. देखो जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर के पास ये पावर रहती है कि वो अपॉइंटमेंट करे. तो कलेक्टर के पास लेकिन ये बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की पहले से प्रायर परमिशन होनी चाहिए या फिर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट की. So what does it says? Let us read it. The collector shall, with the previous approval of the state government, appoint an officer. State government की permission के साथ collector जो है वो appoint कर सकता है. Not below the rank of deputy collector to be the rent controlling authority. लेकिन वो deputy collector के नीचे नहीं होना चाहिए. उसको वो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन उसी जूरिसडिक्शन के लिए जिसमें कलेक्टर का जूरिसडिक्शन है, उसका भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे वाले पोस्ट नहीं होनी चाहिए, उसके अबव पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन विद इन द जूरिसडिक्शन ही होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन भी सेम चीज बोलता है, लेकिन वो ये बोलता है कि एक से ज्यादा हम डेप्यूटी कलेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, बट अगेन लेट अस रीड दैट एज वेल. The collector may, with the previous approval of the state government, appoint from amongst officers not below the rank of deputy collector. मतलब उसी के among जो उन्हीं के डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट कर सकती है, लेकिन डेप्यूटी कलेक्टर के नीचे उसकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए. Moving further, one or more RCA as he deems fit to assess the RCA appointed under subsection 1. लेकिन
एक या उससे ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं। उन्हीं के डिपार्टमेंट में डिप्यूटी कलेक्टर के नीचे नहीं होनी चाहिए पोस्ट। ये वाली बात करता है हमारा सेक्शन 28। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन विच इज 29। सो व्हाट डज दैट सेक्शन 29 सेज? इट सेज पावर ऑफ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। अब रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की पावर्स क्या होती हैं? सो लेट अस सी व्हाट ऑल द पावर्स आर। बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल सेंस में बात करें तो जो सिविल कोर्ट की जो पावर होती है वही होती है हमारे आरसीए की अथॉरिटी, आरसीए की रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज की जो पावर रहती है वो एग्जैक्टली सिविल कोर्ट के जैसी ही होती है। जैसे वो समन इशू करते हैं, अटेंडेंस ऑफ द पर्सन की इन्फोर्समेंट करते हैं, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करते हैं, वही एग्जैक्टली सेम पावर्स होती है इसकी। सो लेट अस जस्ट क्विकली रीड दैट। द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर्स as are vested in a civil court under the CPC 1908 in any proceeding before it in respect of following matters, namely सीपीसी के अंदर जैसे सिविल कोर्ट की पावर है वैसे आरसीए के पास भी है। अब कौन कौन सी पावर्स है? जैसे समन भेजना, इन्फोर्स करना, एग्जामिन करना, जो डॉक्यूमेंट्स उनका प्रोडक्ट होए वो आए, बुलवाएं हम उसको, इशू करना कमीशंस को, और कोई भी ऐसे मैटर्स जो रेलेवेंट हैं, जो होने चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द सेक्शन 29। मूविंग फर्दर टू सेक्शन 30 विच इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोसीजर होती है जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को फॉलो करनी है, क्या क्या उनको करना पड़ता है? सो लेट अस रीड दैट। नो ऑर्डर विच प्रेजुडिशियली affects any person shall be made by the rent control authority under this act without giving him a reasonable opportunity of showing cause against the order proposed to be made and until his objections। सबसे पहली बात बहुत ही सिंपल है। आज अगर कोर्ट में कोई भी केस आता है, क्या अपन दोनों पार्टीज को नहीं सुनते? फेयर ट्रायल तो हर जगह हो ही रहा है ना। तो आरसीए को भी ये फॉलो करना है, उसको फेयर ट्रायल करना ही पड़ेगा। जब तक जो ऑब्जेक्शंस आए उसके क्लैरिफिकेशन वो नहीं सुनेगी, सामने वाले पार्टी को नहीं सुनेगी, दोनों पार्टी की एक प्रॉपर हियरिंग नहीं होगी, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, राइट? Under this act without giving him a reasonable opportunity of showing cause। देखा, reasonable opportunity दी उन्होंने। against the order proposed to be made and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same have been considered by the rent controlling authority। और वो जो भी objections, जो भी application, जो भी proofs दिखाएगा वो rent control authority उसको ध्यान में रखकर ही decision देती है। That's all this section says basically। Let us read one more clause of it। In all proceedings before it, if rent control authority shall consider the question of costs and award such cost to or against any party as rent controlling authority considers reasonable। और जो भी पेनल्टी और पनिशमेंट मिलती है वो रीजनेबल होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया। जो पनिशमेंट है वो बहुत ही रीजनेबल होती है कि दोनों पार्टी के लिए फेयर हो, फेयर ट्रायल हो, ठीक है? So that's it about today's video। I hope you guys are clear with the concepts and these sections। These sections are very easy। I hope you guys grasp that these sections, and if you guys haven't watched the previous video, so please go and watch it out। And if you liked this video, so just share this video and like this video, share this video with all of your friends, and just stay tuned with us for the further lectures। Thank you।